Hello students, we were doing infinite series. Last time we did definition of infinite series along with convergence and divergence of the series. Let us recall when we say summation an, that is series convergent, divergent और oscillatory. So हमने क्या किया था? हमने समीशन ए एन को सीक्वेंस एस एन से रिलेट किया था. कन्वर्जेंस ऑफ ए एन डिपेंड्स ऑन कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एस एन. वट इज एस एन? एस एन इज सीक्वेंस ऑफ nth partial sum of the series. So if limit Sn, n approaches infinity, is finite, s finite value say s, then summation an n1 to infinity is also convergent to s, the finite value s. Next is divergent. Summation an is divergent if sequence Sn is divergent. That is, if limit of Sn, n approaches infinity, is plus minus infinity, then summation an n1 to infinity is also plus minus infinity. Again, summation an is said to oscillate infinitely or finitely if summation Sn oscillate infinitely or finitely. So let us discuss some problems based on the convergence. First problem is, show that the series 1 by 3 plus 1 by 3 square plus 1 by 3 cube and so on converges. Students, let us now relate this with Sn. So let summation an is summation 1 by 3 raised to power n. Clear? इसकी nth term क्या होगी? इसकी first term है 1 upon 3 raised to power 1. Second term is 1 by 3 raised to power 2. थर्ड टर्म इज 1 by 3 रेज टू पावर क्यूब. सो जो nth टर्म होगी वो क्या होगी? 1 by 3 रेज टू पावर n. सो an क्या होगा? 1 upon 3 रेज टू पावर n. सो समीशन an इज इक्वल टू समीशन 1 by 3 रेज टू पावर n. सो व्हाट इज s1? इज a1 विच इज 1 by 3. s2 इज a1 plus a2 which is 1 by 3 plus 1 by 3 square. So on. So what is Sn? Sum of first n terms of the series. यहाँ पे आएगा 1 upon 3n. So this is Sn. 1 by 3 plus 1 by 3 square plus 1 by 3 cube up to 1 upon 3 to the power n. This is Sn. अब summation an converge करेगी if sequence Sn converges. So यही हमने लिखा है, summation an converges if summation an is convergent. स्टूडेंट्स यहाँ पे एक करेक्शन है, यहाँ पे आप 1 upon 3n लास्ट टर्म लिखोगे. सो Sn. अब Sn अगर आप देखो, इट इज़ अ GP सीरीज विथ कॉमन रेशो 1 by 3. सो व्हाट इज सम ऑफ GP सीरीज? a1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 upon r. ये यहाँ पे हमने लिखा हुआ है. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द GP सीरीज इज a1 minus r to the power n upon 1 minus r. So we will use, यहाँ पे आप plus 1 by 3n इसको करेक्ट करो. तो यहाँ पे we will use this formula. So first term is 1 by 3. It is 1 by 3. 1 minus r. Common ratio is 1 by 3. So 1 by 3 to the power n. Divide by 1 minus 1 by 3. So it is 1 by 2. 1 minus 1 upon 3 to the power n. So this is Sn. So let us take limit n approaches infinity both sides. So limit n approaches infinity, Sn is equal to limit n approaches infinity 1 by 2, 1 minus 1 by 3 to the power n, which is 1 by 2, because 1 upon 3 to the power n, when n approaches infinity, it approaches 0. So आपने यहाँ पे एक रिजल्ट भी लर्न करना है. रिजल्ट इज लिमिट n approaches infinity, a to the power n is always 0 if this a is less than 1. अगर आपके पास a to the power n है और n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, और ये जो a है इसका मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है, तो आपके पास ये 0 को अप्रोच करेगा. और अगर आपके पास मैग्नीट्यूड a जो है वो ग्रेटर देन 1 है, देन इट इज़ इन्फिनिटी. सो इस रिजल्ट को आपने लर्न करना है. ये रिजल्ट बहुत जगह हम यूज़ करेंगे. दैट इज लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, a to the power n is 0 if magnitude of a is less than 1, and it is infinity if magnitude of a is greater than 1. So this will become
हाफ। जब आपने इसकी लिमिट ली तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, हाफ, विच इज़ अ फाइनाइट क्वांटिटी। सो एस एन कहाँ कन्वर्ज कर गई, सीक्वेंस एस एन कन्वर्जेस टू हाफ। सो समीशन ए एन ऑल्सो कन्वर्जेस एंड कन्वर्जेस टू 1/2, सेम लिमिट पे कन्वर्ज करेगा। सो दिस इज क्वेश्चन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, show that this series 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square plus so on infinity diverges to infinity. So इसको फिर से हमने Sn से रिलेट करना है. So what is nth term? Nth term is n square. First term is 1 square, second is 2 square, 3 square and so on. So it is n square. So अगर हम Sn लिखेंगे इसका, Sn is sum of first n terms of the series. So it is 1 square, 2 square, 3 square up to n square. है क्या ये आपके पास स्क्वायर्स ऑफ इन नेचुरल फर्स्ट एन नेचुरल नंबर. सो उनका सम क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6. सो टेकिंग लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी बोथ साइड्स we will get this as infinity. So sequence Sn diverges to infinity. So therefore summation an also diverges and diverges to plus infinity. Now next question. अब स्टूडेंट्स मैंने एक आपके साथ रिमार्क डिस्कस किया था कि अगर आपके पास पॉजिटिव सीरीज़ है तो वो हमेशा या तो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज. पॉजिटिव मीन्स आपके पास a1 + a2 + a3 अप टू सो ऑन, ये जो सीरीज़ हैं इसमें सारी टर्म्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं. कहीं पे भी आपके पास माइनस साइन नहीं आएगा, हर साइन प्लस में होगा. सो दिस इज़ पॉजिटिव सीरीज़. अब पॉजिटिव सीरीज़ या कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज. अब ये जो आपके पास सीरीज़ है इट इज़ -1 to the power n-1. सो इसका जो साइन है वो n पे डिपेंड करेगा, ऑल्टरनेट साइंस आएंगे. अगर हम n = 1 ले तो इट इज़ 1, n = 2 ले तो इट इज़ -1, n = 3 ले तो इट इज़ अगेन +1. सो इस तरह से इसके साइंस जो हैं वो चेंज होंगे. सो सीरीज़ जब हम लिखेंगे a1 + a2 + a3 तो आपके पास 1 -1 +1 -1 +1 -1, तो माइनस वाली टर्म्स भी यहाँ पे इंक्लूड हो रखी हैं. तो यहाँ पे नेचर ऑसिलेटरी हो सकता है. ठीक है, जहाँ पे आपके पास पॉजिटिव सीरीज़ है वहाँ पे सिर्फ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट. सो हाउ विल वी चेक दैट दिस ऑसिलेट्स. सो हम वहीं से Sn के कंसेप्ट से, Sn इज सीक्वेंस ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. सो Sn फर्स्ट n टर्म्स ले ली, a1 a2 अप टू an. अब स्टूडेंट यहाँ पे जो nth टर्म है वो पॉजिटिव ऑड और इवन के केस में वो डिफर करेगी. अगर n इवन है तो आपके पास वो टर्म क्या आएगी और अगर n ऑड है तो क्या आएगी. अगर टर्म इवन, अब यहाँ पे अगर मैं a1 निकालूँ तो इट इज़ 1, a2 निकालूँ तो -1, a3 निकालूँ तो इट इज़ +1. अगर हम इसको चेक करें तो हमारे पास ऑड टर्म्स के लिए इट इज़ 1 और इवन टर्म्स के लिए इट इज़ -1. सो nth टर्म जो है इसकी वो अगर आपके पास इवन टर्म है nth तो वो -1 होगी लास्ट टर्म, और अगर ऑड है तो +1. तो Sn आपके पास जब आप निकालोगे तो सपोज S3 है, लास्ट टर्म 3 है, तो सम क्या आ गया 1 व्हेन n इज ऑड. क्लियर. सपोज n4 है तो सम क्या आ जाएगा -0, फिर सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी. सो व्हेन n इज इवन तो 4 देखो यहाँ पे 1 2 3 4 तो टर्म इज ऑल कैंसल. सो Sn इज 0. और अगर n इवन है तो एक 1 बचे, ऑड है तो एक 1 बच जाएगा. सो आपके पास Sn क्या आ जाएगा, इफ n इज इवन इट इज 0, इफ n इज ऑड इट इज 1. सो लिमिट ले लो, लिमिट बोथ साइड्स. तो हमारे पास जो Sn है वो या तो 0 होगा या 1 होगा, n पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा. ठीक है, n इवन है तो इट इज 0, n ऑड है तो इट इज 1. सो इट ऑसिलेट्स फाइनाइट बिटवीन टू फाइनाइट वैल्यू दैट इज 0 and 1. सो Sn सीक्वेंस Sn फाइनाइट oscillates finitely, therefore so summation an oscillates finitely. Next question is show that the series oscillate infinitely. so अगर हम इसे चेक करें, पहले वाला जो हमारा क्वेश्चन था वहाँ पे -1 to the power n था, बट यहाँ पे n को एसोसिएट कर दिया इसके साथ, इट इज़ मल्टीप्लाई नाउ मल्टीप्लाइड विथ n. सो आपके पास क्या आएगा, लेट अस चेक. अगर आप इस n की वजह से आपके पास S1 फर्स्ट टर्म क्या है, पुट n इज इक्वल टू 1 इट इज -1. सेकेंड S2 क्या आएगा, S2 इज a1 + a2 सो इट इज अगेन 1.
S3 अगर आप चेक करें इट इज -2, S4 इज 2, S5 इज -3, S6 इज 3, सो X7 आ जाएगा 4 और S8 आ जाएगा -4. सो ये इसी तरह चलती रहेगी. तो आपके पास सीक्वेंस क्या बनी, Sn क्या बनी, डिपेंड करेगा nth टर्म पे. ठीक है. सो आपके पास S6 जैसे यहाँ पे 3 है, S7 4 है, फिर वो -4, तो आपके पास -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन. सो आपके पास कहाँ से शुरू होगा ये माइनस. अगर आप n इन्फिनिटी करो, अगर n इन्फिनिटी लेते हैं तो ये -इन्फिनिटी तक जाएगा, और अगर s प्लस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. सो इसकी इनफिमम वैल्यू, जो सबसे लीस्ट वैल्यू, वो -इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, और जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी. मैं अप्रोच वर्ड यूज कर रही हूँ यहाँ पे. तो आपके पास जहाँ पे हम अप्रोच वर्ड यूज करते हैं वहाँ पे हम लिमिट से यूज, लिमिट सुप्रीमम. सुप्रीमम मीन्स इट इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल. सो इट इज प्लस इन्फिनिटी, सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू, और इधर इनफिमम. लिमिट इसलिए बिकॉज इट इज अप्रोचिंग, सो इट इज -इन्फिनिटी. तो लेफ्ट साइड से इट इज अप्रोचिंग -इन्फिनिटी एंड फ्रॉम राइट साइड इट इज अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी. सो आपका जो Sn है वो ऑसिलेट्स करेगा बिटवीन प्लस एंड माइनस, बिटवीन माइनस एंड प्लस इन्फिनिटी. सो आपका An भी क्या करेगा, ऑसिलेट्स करेगा इनफाइनाइटली. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज show that the series summation n1 to infinity 1 upon n plus 1 into n plus 2 converges to 1/4. So students फिर से इसको डिस्कस करने के लिए हमें Sn बनानी है, nth टर्म. nth टर्म Sn सीक्वेंस की nth टर्म है, और हमें Sn क्या है, a1 plus a2 plus a3 अप टू an का टर्म. सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज. अब इसकी nth टर्म ये आपको दिया हुआ है, समीशन an इज इक्वल टू दिस. सो समीशन an इज इक्वल टू दिस. सो इट मीन्स an क्या आ जाएगा, 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2. इन सारे क्वेश्चंस को करने का तरीका, जब भी आपके पास n न्यूमरेटर में आ जाए, डिनोमिनेटर में आ जाए, तो आपने पार्शियल फ्रैक्शंस को पहले इनको अलग अलग कर लेना है. ठीक है. ये न्यूमरेटर में है, सॉरी डिनोमिनेटर में है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो हमने मल्टीप्लिकेशन को हटाना है न्यूमरेटर में से. ठीक है. तो न्यूमरेटर को हमने क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शन से आपने अलग अलग करके लिख लिया. तो आपके पास आ जाएगा 1/2n माइनस 1/n प्लस 1 प्लस 1/2n प्लस 2. सो आपके पास nth टर्म, अगर मैं इसको कंबाइन कर लूँ, 1/2n को मैं लिख लूँ 1/n एक साइड पे, और इसी तरह आपके पास ये आ जाएगा हाफ, यहाँ पे हाफ, और ये जो आपके पास ये वाला 1/n प्लस 1 है, क्योंकि यहाँ पे 2 यहाँ पे नहीं पे यूज़ हुआ, तो हमने इसको हाफ हाफ करके लिख लिया. इसको हमने लिखा 1/2n माइनस 1/2n प्लस 1 माइनस 1/2n प्लस 1 प्लस 1/2n प्लस 2. सो इन दोनों को कंबाइन कर लिया और इन दोनों को कंबाइन कर लिया. सो दिस इज द ट्रिक यूज्ड इन दिस क्वेश्चन. सो व्हाट इज a1? a1 is put n equal to 1. So it is 1/2 minus 1 minus half minus 1/2 minus 1/3. इसी तरह a2 लिखा. अब आप देखो ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, a3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह ये आगे वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा. इसी तरह अगर हम लास्ट में देखें तो ये आपके पास सारी टर्म्स इसके साथ कैंसिल हो गई, ये ऊपर वाले के साथ, तो ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी. ओनली यू आर लेफ्ट विथ दिस फर्स्ट टर्म एंड दिस दी last term. So you will get 1/2 1 minus n plus 1 minus 1/2 minus 1/n plus 2. So combining all this you will get this. Now taking limit both sides. जब आप n approaches infinity करोगे, so 1/infinity is 0, 1/infinity is again 0. So result is 1/4. So sequence Sn converges to 1/4. This implies summation an is also convergent and convergent to the same limit, that is 1/4. Next question. Show that the series summation n1 to infinity 1/n plus 2 converges to 3/4. So students, अगर हम इसको फिर से देखें तो ये आपके पास क्या है, 1/n into n plus 2.
सो 1/n इंटू एन प्लस टू, यहाँ पे फिर से an आपका क्या आ गया 1/n इंटू एन प्लस टू। सो इसको हमने फिर से पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेट आपके पास जो n है वो डिनोमिनेटर में है, और अगर आपके पास n डिनोमिनेटर में और साथ में मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको हमने अलग कर लेना है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन को हटाना है। तो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन वी गेट 1/2 1/n माइनस 1/n प्लस टू। सो फिर से a1 a2 अप टू सो ऑन, निकालना क्या है an इज सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स। सो जब हमने इसका सम किया देखो तो ये आपके पास क्या आ गया a1 प्लस a2 अप टू सो ऑन इज दिस। So again combining all the terms and taking n approaches infinity, we will get this as 3/4. So sequence Sn converges to 3/4, therefore summation an also converges to 3/4. Next question, show that the series summation n1 to infinity 3/4 raised to power n minus 1 converges to 4. सो स्टूडेंट्स फिर से हमने इसकी एनर टर्म लिखी, एनर टर्म इज 3/4 टू द पावर n माइनस 1. वट इज Sn? Sn इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज. So it is a1 plus a2 plus a3 up to an. So it is 1 3/4 3/4 square up to 3/4 raised to power n minus 1. फिर से आपके पास ये GP सीरीज है और फर्स्ट टर्म इसकी क्या है 3/4 टू द पावर 0 और इसकी कॉमन रेशियो क्या है 3/4. So what is sum of n terms of the GPs? It is a1 minus r to the power n upon 1 minus r, where r is common ratio and less than 1. 3/4 is less than 1. So आपके पास यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, a क्या है इसमें 1 माइनस कॉमन रेशियो इज 3/4 टू द पावर n 1 minus r. So it is 4 1 minus 3/4 to the power n, taking limit n approaches infinity. और फिर से हमने रिजल्ट यूज किया limit a to the power n when magnitude of a is less than 1, the limit goes to 0. So यही हमने रिजल्ट यूज किया, limit n approaches infinity 3/4 to the power n is 0. So answer is 4. Therefore the sequence converges to 4 and hence the series converges to 4. So this completes numerical based on convergence and divergence of series. So thank you for watching the video.